Good morning, everyone. In the last class, I did talk about the differential equation. What is a differential equation? And then we did talk about the order and degree of a differential equation. Now, there are three different types of differential equations: variable separable method based, then the homogeneous differential equation, and linear differential equation. In our last class, I did talk about the basics of variable separable method-based problems. So let's consider a few more questions to understand this method more clearly. So this is the sample question which we already considered. The language of the questions would be similar. Find the general solution, or it may be a particular solution. So what is the meaning of a particular solution? That will cover via one another example. So when you look at the equation carefully, dy by dx is equal to root 4 minus y square. You just need to separate the variables. If you note carefully, this is about the observational skills. When I rearrange, of course, dx and dy must be in the numerator. And then accordingly, this term will come to denominator on the left hand side. So that dy upon root 4 minus y square is equal to dx. And now you integrate both the sides. So once you integrate both the sides, here you will find the standard type of a formula based integral. Sometimes it may be based even on your product rule or maybe on the partial fraction based also. But generally a direct formula based integral will be there. So apply the formula. So this is your required answer. Plus c, as a constant of integration, you write any one of the sides. But if you even solve it further, as already explained, you can say this is your required answer. So this is okay, or even this is okay. Choice is yours. So this question was given to you in your homework. When you look at the question carefully, anyone? Dy would be here, and x square plus 5x minus 3 over x plus 2 into dx. So this is the way variables are separated. This is the condition. So just we know it obviously. X cannot be minus 2. So it's not the product over here. Just ignore it. So now this is the given differential equation. Integrate both the sides. And how I am going to integrate this? Divide. Usual method to follow. Degree of numerator is greater than the degree of denominator. You divide that and follow the simple approach of integral. Look at this type of question. Find the general solution of this differential equation. So dy is equal to dx will come in the RHS log x plus 1 into dx. So when I integrate both the sides, it is preferably that you write and mention it in the next step. Integrating both the sides. And now we have a simple observation. How I am going to integrate RHS? इसे 1 से multiply मान लिया and think of Eilert rule. So you have logarithmic first function and 1 as the algebra second function. Now this is integrated. So integral of dy is y. Start applying the product rule RHS में. First as it is into integral of second minus large integrate derivative of first into integral of second.
Now the idea is, if you want, you can, because you have already integrated this LHS, so you can always use plus C on the left hand side or on the right hand side, because one part is at least integrated. Else otherwise I would recommend to use plus C at the end once this integral is also done. But since I have integrated LHS, so that's okay. So this x into log of x plus 1, and then how I'm going to integrate this? This is x upon x plus 1. So plus 1 minus 1 कर दिया and separate कर दीजिए, और finally let me write down the answer. क्या आ जाएगा? This is same and this will be 1 का इंटीग्रल x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रल log of x plus 1 plus c. Now the idea is, this is this and this, they are same, but in first I didn't use modular sign, in second I did use. Though I should mention the modulus everywhere where I am using the term of log x. But since it was missing in the question itself, therefore I avoided that. Choice is yours. At least board में इसके ऊपर number नहीं कट रहे हैं. But as already mentioned, it is highly recommended whenever writing the term of log, please use the modulus sign. तो वैसे तो क्वेश्चन सेट करने वाले को भी ऐसे देना चाहिए. Yes. Please check out the question and I want the hint from you. क्या कर सकते हैं? Think about this. If you note carefully, we have log of dy by dx is ax plus by, or what will be dy by dx? log जब RHS में आएगा तो उसका एंटी प्रोसेस होगा, और log का एंटी प्रोसेस E होता है, तो ये इसके इक्वल है. And this is the most important observation and the step of this question. इसके बाद तो ये बहुत इजी है. dy by dx क्या हो गया? e की पावर ax इंटू e की पावर by. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया क्लास 7th का. वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, सो dy अपॉन e की पावर by, और इधर e की पावर ax इधर ही रहने दिया और dx इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया. So that this is e की पावर माइनस by into dy, और ये e की पावर ax into dx. Integrate both the sides now. So अब तो इनका आंसर सिंपल है. e का इंटीग्रल सेम, बट यहां डिवाइड बाय माइनस b भी होगा. डिवाइड बाय a हो जाएगा एंड प्लस c. LCM or calculation, that is actually not required. This is your final required answer. Chaliye everyone, please mark your attendance in the chat box. Do it fast. So based on this, we have our NCERT exercise 9.4. For each of the differential equation, find the general solution. So first question, they started with a very simple question.
सो क्लियरली ऑब्जर्वेशन है dx RHS में आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वो नेक्स्ट स्टेप में दिखा दिया, मैं इसी में दिखा रहा हूं. नाउ हाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस. RHS का इंटीग्रल we have many ways. Now this is a simple integral. One of the possible way could be rationalize कर दीजिए with 1 minus cos x. Else 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. This is your grade 11th वाला ट्रिगो का फार्मूला और ये 2 cos square x by 2. नोट दैट मैंने अभी LHS को भी इंटीग्रेट नहीं करा है और ये बन गया tan square x by 2. tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का एक ही मेथड है, राइट दिस एज secant स्क्वायर minus 1. नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस डायरेक्टली. तो ये हो गया y, इसका इंटीग्रल secant स्क्वायर का tan x by 2 एंड डू नॉट फॉरगेट इसका डिवाइड बाय 1 by 2 भी होगा, माइनस x 1 का इंटीग्रल हो गया प्लस c. मैक्सिमम व्हाट आई कैन डू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 tan x by 2 minus x plus c. Your required answer. सेकेंड पार्ट तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, सेम क्वेश्चन. When I look at the third question, dy by dx plus y is equal to 1. Rearrange. So dy by dx will be 1 minus y. और अब आपके सामने ही है, ये वेरिएबल सेपरेट हो गए. You can integrate it now. So इसका इंटीग्रल हो गया log of 1 minus y और माइनस y का मत भूल जाना, माइनस से यहां मल्टीप्लाई होगा और दिस इज x plus c. Your required answer. That's it. Though later we will learn the linear differential equation. अभी वो नहीं बताऊंगा, बट बेसिक आइडिया इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कुछ ऐसे लिखा जाएगा और फिर ये मैं P कहूंगा, इसे Q कहेंगे एंड आई विल फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन may be identified in some different form also, and they will give the totally different face value of the answer. But if method is identified correctly, you will get the full marks. तो अभी के लिए forget about this. सिंपल हमें सोचना है, तो ये अभी जरूरत ही नहीं थी. Check out fourth question. Secant square x into tan y dy plus secant square y tan x dy, सॉरी पहले वाला dx है. So this is dx and this is equal to 0. So simple observation है, देखिए secant square x tan y dx is equal to, ये टर्म इधर आकर माइनस हो जाएगी, secant square y tan x into dy.
एंड एज ऑलरेडी मेंशन्ड dx एंड dy तो न्यूमरेटर में ही रहेंगे, तो dx अगर न्यूमरेटर में छोड़ना है तो यहां सीकेंड स्क्वायर एक्स और यहां से tan x इधर लाकर डिवाइड कर दो। वेरिएबल सेपरेट हो गए x के पूरे में, और इधर अगर अब आप ध्यान से देखें तो क्या बचा, और यहां से tan y LHS से ले आया मैं। तो बस ये मेन स्टेप था। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, और ये तो देखते ही पता है, नीचे वाले tan x को t लिया, ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये dt बाई टी आ गया। dt बाई टी का मतलब लॉग का फार्मूला। अब यहां प्लस c लिखो या log c लिखो, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि दोनों में log इन्वॉल्व हो गया है मेरी टर्म्स में, आई वुड प्रेफर टू टेक कांस्टेंट एज log c। क्योंकि इसके बाद ना थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जनरली एक्सपेक्टेड है कि एक दो स्टेप तो आप आगे ये वाले बिल्कुल दिखाएं। ये आ जाएगा, और log a प्लस log b क्या हो गया, log ऑफ ab। एनी डाउट टू एनीवन? Sandeep, mute yourself. और ये आ गया इक्वल टू log c, और फिर हमें पता है वही एंटी प्रोसेस, log से log लॉजिकली कैंसल, तो mod ऑफ tan x इंटू tan y विल इक्वल टू c, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब फर्दर इसके बाद भी मैं वैसे चाहता तो मॉड RHS में खुलता तो वो प्लस माइनस सी दे देता, तो वो फिर अब आपकी चॉइस है, अगर एक लेवल एक्स्ट्रा और ये भी अगर आपको जाना है, और यू कैन ऑलवेज अवॉइड दैट। कांस्टेंट आप हमेशा प्लस सी लिख रहे हैं, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आप माइनस सी भी लिख देंगे तब भी गलत नहीं है, बट कन्वेंशनली इट इज ऑलवेज चोजन एट प्लस सी। Check out fifth question. E power x plus e power minus x इंटू dy, ये इधर माइनस है, इसको RHS में लाके मैं सीधा लिख देता हूं, इक्वल टू ये हो जाएगा। मैंने पहले स्टेप में रीअरेंज कर दिया, और अब आप अगर ध्यान से देखें तो dy किसके इक्वल बच गया, दिस ओनली। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, और सिंपल ऑब्जर्वेशन है, नीचे वाले का डेरिवेटिव है ऊपर, तो ये log के अंदर आ जाएगा। अब ये सिंपल सिंपल इंटीग्रल्स हैं, योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। अब जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन है, सो आई डोंट टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन नाउ ऑन। आइडिया आपको अगर लग चुका है तो सिंपल चीज है कि ये सिर्फ y वाला वेरिएबल सेपरेट इधर हो गया, ये एज इट इज विद dx, इंटीग्रेट
both the sides, and there is the direct formula tan inverse y, और ये इंटीग्रेट होकर इसके इक्वल आ गया, योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए एवरीवन प्लीज ट्राई आउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सोचे जरा ध्यान से कैसे होगा। यस हाँ है, वेरिएबल सेपरेबल का सिंपल आइडेंटिफिकेशन। अभी तो ज्यादा दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि और मेथड हमने देखे ही नहीं है। जब सारे मेथड कर लेंगे तब मेन रहता है कि किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे इसे। तो ये मैं RHS में ले आता हूं लाइक दिस, और अब dx एंड dy शुड बी इन द न्यूमरेटर ओनली। तो dx बस अगर यहां छोड़ना है तो उसके अलावा जो भी टर्म बची इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ओपन द ब्रैकेट करने के बाद e⁻x -1, और RHS में क्लियरली बच गया रीअरेंज करने के बाद दिस। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, नीचे वाले को t लिया, ऊपर डेरिवेटिव था, सेम वे यहां। अब क्योंकि दोनों के इंटीग्रल में log आ गया है, देयरफॉर मैं कांस्टेंट को c की जगह प्रेफर करूंगा log c, सो दैट log की प्रॉपर्टी वगैरह से ये आ जाएगा c इंटू tan y का मॉड, और when I open the modulus sign plus minus c into tan y, your required answer. As mentioned earlier, आप इसको भी अपना आंसर छोड़ सकते थे, बिल्कुल इस लाइन में यही मेरा आंसर आ चुका है, बट एक दो स्टेप्स थोड़ा सा आगे समझ के कर लेंगे, दैट वुड बी मोर अप्रिशिएटेड। नाउ नोट केयरफुली, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए क्या कहा गया है। For each of the following differential equation, find the particular solution. अभी तक हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, now it is about the particular solution. और if you look at the question carefully, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, साथ में ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है, y is 1 when x is 0. So this condition I am going to use at the end of my solution. मतलब यूजुअल मेथड से ये पूरे आंसर जैसे अभी तक निकाले हैं, आप ऐसे आंसर तो सेम इसी मेथड से निकाल लेंगे। और जो लास्ट स्टेप होगा, अब यहां पर हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी गिवन है, we will get the value of constant c. चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले तो यूजुअल मेथड मैंने ऑब्जर्व किया, और अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं वेरिएबल सेपरेट कर 2x² प्लस x अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, सो आई नीड टू इंटीग्रेट दिस नाउ। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए अगर आप नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखें तो x² कॉमन, x प्लस 1 इंटू दिस। सो बेसिकली मैंने फैक्टराइज कर दिया,
डिनोमिनेटर को, और वो दे देगा मुझे x+1 इंटू x²+1। इट इज हाईली रिकमेंडेड, आप इसको क्या कह दीजिए, इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू I1, वेयर I1 मैंने RHS वाले इंटीग्रल को लिया है, क्योंकि अब ये एक अलग से मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व I1? एनीवन? कैसे होगा I1? इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे I1 को? इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो अगर मैं ध्यान से इसे आइडेंटिफाई करूं तो अब आप क्या करेंगे, लेट 2x² प्लस x अपॉन x+1 इंटू x²+1 इज इक्वल टू लीनियर वाले का a अपॉन x+1, और x²+1 क्लियरली नॉन फैक्टराइजेबल है, तो इसका फैक्टर आ जाएगा bx प्लस c। यूजुअल मेथड से सॉल्व कीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ abc, पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी तक हमने देखो ऊपर जो क्वेश्चन देखे थे वहां सिंपल इंटीग्रल के फॉर्मूलाज, डायरेक्ट फॉर्मूला या ज्यादा से ज्यादा नीचे वाले को t लिया, ऊपर डेरिवेटिव, उस तरह के इंटीग्रल मिल रहे थे। बट इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि हमें ऐसे भी क्वेश्चंस मिले जहां आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़े, मींस आइलेट लगाना पड़ सकता था या पार्शियल फ्रैक्शन भी हो सकता है। प्लीज चेक आउट दिस क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन ही पढ़कर देखिए। अब आप, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में सॉरी एक चीज बतानी रह गई, आपके पास मान लो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये पूरा मेरा आंसर आ गया, और फिर अब ये क्या था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो y is 1, x is 0, when x is 0, तो x को 0 और y को 1 पुट कर देंगे, I will get the value of constant c, और उस c की वैल्यू फिर से मेन जहां पर प्लस c लिखा था सब्स्टिट्यूट कर देंगे, I will get my final required answer। चलिए वो इसमें यहां मैंने प्रॉपर पूरा सॉल्व किया है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। पहला स्टेप देखते ही क्लियर है, ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। क्वेश्चन को अगर मैंने ध्यान से आइडेंटिफाई करा तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में था, जिसे हमने एज अ स्पेशल फॉर्म ट्रीट किया था। इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, यहां तक पहुंच चुके हैं, चेक इट आउट। x² को t लिया, ऊपर डेरिवेटिव, पार्शियल फ्रैक्शन, डायरेक्ट स्प्लिट हो गया, और इसे इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया। चेक इट आउट, द लास्ट स्टेप यहां तक। लॉग की प्रॉपर्टी से ये log a बाई b लगा दिया, log a माइनस log b, ये आ गया। सब्स्टिट्यूशन किया था मैंने t x², तो आप t की जगह x² रिप्लेस कर दीजिए, दिस इज माय आंसर। तो ये तो मेरे पास
से सॉल्व करने का और मेथड वैसे अगर आप सोचो तो मैं निकाल सकता हूं, बट फॉर्म को आइडेंटिफाई कर लिया तो दिस इज इजियर। नहीं तो ऑब्वियसली फिर आप चाहते तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख देते, तो ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन, तो थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। तो इस तरह से बिल्कुल मैं सॉल्व कर सकता हूं, आंसर सेम आएगा, यही आएगा आंसर। बट इफ यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यहां तो चलो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन था, अगर मान लो एक्स पावर 5 माइनस वन होता तब और कोई मेथड नहीं था, आपको एग्जैक्टली यही अप्रोच को लगाना पड़ता कि डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो इसीलिए अप्रोच को समझना जरूरी है साथ में। सो आई एज्यूम वी रीच्ड अप टू दिस स्टेप, फाइनल आंसर ये आ गया अभी। और अब मैंने कंडीशन को देखा, इसे एक्चुअली कहा जाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। At university level, we did talk about differential equations much in details. बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरा स्टडी होता है एज अ सब्जेक्ट ये differential equations. In fact, this has got numerous applications in real life also. 12th में तो बहुत अब उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं in the form of word problems, but it has got many applications in real life. In fact, 10 years, around 10, 11 years back, I read one research article, and therein there is a researcher group of scientists and mathematicians. अफ्रीका के कुछ साइंटिस्ट थे और एक और किसी कंट्री का, आई डोंट एबल टू रिकॉल। सो दे वर रिसर्चिंग यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट एग्जैक्टली दे हैव डन, जैसे ओशियन है, अब ओशियन के अंदर 8-7 किलोमीटर नीचे मान लो आपके पास ऑयल के रिजर्वियर हैं, ऑयल प्रेजेंट है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स मिलियंस मीट्रिक टन्स। अब वो ओशियन में उस प्लेस को लोकेट करना, इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो उसके लिए आई डोंट नो हाउ कम, बट दे यूज्ड एक्चुअली द मेथड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसकी हेल्प से उन्होंने उस प्लेस को लोकेट कर लिया इन द ओशियन कि यहां पे अगर आप बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे जाएंगे, यू विल फाइंड द ऑयल रिजर्वियर्स। So this is one of the application I'm talking about. Otherwise, there is a, in fact, एक कोर्ट केस के अंदर आया था यूएस के अंदर, a person was convicted, उसको करा गया कि he is a murderer। तो उसने मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज करके पूरा जस्टिफाई किया था कि he was not present at the time over there। वो जो बॉडी डिके का हम कहते हैं कि हर पर्सन बॉडी की डेथ के बाद, किसी पर्सन की डेथ के बाद बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन शुरू हो जाता है, तो लॉ ऑफ कूलिंग यूज्ड विद द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड कोर्ट ने उसकी उस जज में उसको पूरा माना था, करेक्ट माना था, मैथमेटिकली इट वाज प्रूवन एंड ही वाज नॉट गिल्टी। And there are lot many examples, I mean, which I have read specifically wherein we did use a differential equation in our real life. Anyway, वो सब applications तो बाद में पढ़ते हैं, अभी के लिए तो सिर्फ उन्हें सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं वापस, y0 x2, तो अब आपका ये सॉल्यूशन आ गया था, आप इसमें वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिए, x को 2 रख दो, y को 0। ये देखिए ये आ गया, सॉल्व करा, c की वैल्यू आ गई। और अब जो ये c की वैल्यू आई है, ये आप फिर से उठाकर ऊपर यहां पुट कर दो, c की वैल्यू ऊपर रिप्लेस कर दिया, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो फाइनल स्टेप ये, फाइनल आंसर ये होगा। So in fact there are certain questions for the homework। अभी है टाइम, अभी हम कंटिन्यू करेंगे,
और इनमें से कुछ तो मैंने सॉल्व कर ही दिए हैं, इसे हम अवॉइड करेंगे क्योंकि dx अपॉन dy वाली फॉर्म जनरली जो ये वाली है, ये थोड़ा टिपिकल टाइप में आता है, इसलिए आई विल नॉट टेक। बट और एक ये वाला 6 पार्ट भी नहीं लेंगे क्योंकि रिड्यूस्ड में सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं लिया गया है। बट इसके अलावा हमें बाकी क्वेश्चंस को बिल्कुल देखना है। सो एक क्वेश्चन और फाइनली देखते हैं एवरीवन। And as already mentioned, today at 1:30 again I am going to take the class. So do join the class and learn कुछ अलग चीजें ही discuss related to syllabus only. We'll be taking that. So consider the following two questions जो मैंने यहाँ एक तरह से homework में दिए हैं, तो इन दोनों का बस solution आपके सामने है. Please check this out. Everyone, check out this solution. एक मिनट, वो मैंने व्यू बदल दिया, फुल स्क्रीन. यस, अब देखिए जरा ध्यान से. तो फर्स्ट पार्ट में इफ यू लुक केयरफुली, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को RHS में लाकर डिवाइड कर दिया, 3x स्क्वायर RHS में आ गया और फिर dx को RHS में ले आए. तो अब ये यहां तक आ गया तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सिंपल आपका वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है. बस इसके बाद तो आपको इंटीग्रेट करना था. फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल तो इजी हैं. थर्ड वन अगर आप ध्यान से देखें, कॉस इनवर्स एक्स को t लिया, नीचे डेरिवेटिव इस तरह से बन के आ गया है डेरिवेटिव. योर आंसर. सेम वे सेकंड पार्ट को देखिए, आइडेंटिफाई, और इसमें 7th क्लास का पहला स्टेप है. बेस सेम, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, उस तरह से सॉरी एडिड, तो वो रूल लगाया है. ये यहां तक आ गए होंगे. e की पावर -y कॉमन. और अब अगर आप ध्यान से देखें तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं. इसके बाद तो सिंपल इंटीग्रल कर दिया बोथ द साइड्स. इंटीग्रेट, you will get your required answer. बस ये अभी आप होमवर्क में ट्राई कर लेना जब टाइम मिले, और फिर हम 1:30 पे कंटिन्यू करेंगे. अब इसमें अगर मैं बात करूं वेरिएबल सेपरेबल में, तो आई विल बी टेकिंग ओनली दीज 3 क्वेश्चंस. ये 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विथ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस. एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. And then you can leave the class, join your next class. Thank you very much.